Now, in this part, we are going to study about certain organs which provides the evidence about the evolutionary relationship between the organisms. कहने का क्या मतलब है, हम यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे बेटा जिनसे हमें ये पता चलता है कि हाउ दी ऑर्गेनिज दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। क्योंकि जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फॉलो करते हैं we find some characteristics which are common and which are present between the different organisms. So कुछ common characteristics जब different organisms में मिलती हैं तो हमें इससे ये idea लगता है कि कहीं ना कहीं ये organisms जो जिनमें common characteristics हैं they are having a common ancestor. So evolution जो है it is one of the important phenomena for the classification. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि evolutionary relationship के basis पे we used to classify the organisms into groups and subgroups, क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म में जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर क्या रहे होंगे बेटा, कॉमन रहे होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही ऑर्गन्स को डिस्कस करने वाले हैं जिससे हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चलता है कि हाउ द ऑर्गेनिज्म दे आर रिलेटेड विद द ईच अदर। सो द हेडिंग इज ट्रेसिंग evolutionary relationship. We have to trace the evolutionary relationship. So there are certain evidences that proves that how the organisms they are evolutionary related. Clear है? So the first organ which we are going to discuss over here are homologous organs. homologous organs क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ हाउ दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन हम उसके साथ साथ ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट आर homologous organs. So basically, homologous organs are those organs of different organisms which are having the similar basic structure and common origin, but they are performing the different function. क्या लिखा है मैंने homologous organs के बारे में? Organs having similar basic structure and common origin, but has been modified to perform different functions. अलग अलग ऑर्गेनिज्म के वो वाले ऑर्गन जिनका सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब अगर उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है एंड दे आर हैविंग द कॉमन ऑरिजिन, मतलब कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर से वो ओरिजिनेट हुए हैं, बट दे आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन. So you have to learn this definition. You have to understand what are homologous organ. तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं. Organs having similar basic structure and common origin, but has been modified to perform different functions. Those organs are called homologous organ. ऐसे organs जो कि different organisms में present हैं, जिनका similar basic structure है, common origin है, but they are now performing the different function. These organs are called homologous organ. For example, forelimbs in reptiles, frog, lizard, bird and humans, they are the examples of homologous organ. forelimbs समझते हो, हमारे ये जो दोनों हाथ हैं, they are considered as forelimbs. In a similar way, forelimbs of reptiles, frog, lizard, bird and humans, they are homologous organ. Now why we are calling them homologous organ बेटा, क्योंकि जब हम उनका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ह्यूमन के हैंड से एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज आवर हैंड. यहाँ से लेके शोल्डर से लेके हमारी एल्बो तक जो बोन होती है दैट इज ह्यूमरस. एल्बो के बाद जो हमारे यहाँ तक ये कलाई तक जो बोन होती है, दे आर टू बोन्स दैट इज रेडियस एंड अल्ना. इन आवर दिस रिस्ट रीजन देयर आर बोन्स दैट आर कॉल्ड कार्पस. in our palm region there are bones that are called metacarpus, and in our finger there are bones that are called phalanges. क्या बताया मैंने? अगर मैं ह्यूमन के फोरलिम्ब की बोन्स का अरेंजमेंट के डिस्कस करूं तो शोल्डर से लेके एल्बो तक जो बोन होती है दैट इज ह्यूमरस. एल्बो से लेके रिस्ट तक दो बोन्स होती है दैट इज रेडियस एंड अल्ना. रिस्ट में हमारी बोन्स होती है दैट इज कार्पस. उसके बाद हमारे पाम रीजन में ओवर हेयर द बोन्स दे आर कॉल्ड मेटाकार्पस, एंड इन आवर फिंगर दे आर बोन्स कॉल्ड phalanges. So this is the basic arrangement of forelimb of human. In a similar way, the bones will be arranged, the similar bones will be present in the forelimb of reptiles, frog, lizard and bird. फॉर एग्जाम्पल जो सील होती है उसके जो फ्लिपर्स होते हैं उसमें भी बोन का अरेंजमेंट सिमिलर रहेगा. जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके भी फोरलिम्स में बोन का जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर रहेगा. बैट जो होती है उसका जो पेटेजियम होता है, आपने देखा होगा बैट में जो लॉन्ग प्रोसेस होता है पेटेजिया जिसको बोलते हैं, उसमें भी बोन्स का प्रोसेस जो होगा अरेंजमेंट वो होगा सेम रहेगा. विंग्स ऑफ बर्ड में भी बोन्स का अरेंजमेंट क्या रहेगा बेटा, सिमिलर रहेगा. So you are seeing that
that in these structure the arrangement of bones that is similar and they are having the common origin also, but the functions are different. For example, जो seal के flippers होते हैं they are used for swimming, जो wings होते हैं birds के they are used for flying, और जो फोर लिम्स होते हैं ह्यूमंस के दे आर यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन. सो यू कैन सी माना कि बेसिक अरेंजमेंट बोन्स का सेम है, बट ऑल दीज ऑर्गन्स विच आई हैव डिस्कस्ड ओवर हेयर दे आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन. So such type of organs which are having the similar basic structure and common origin but they are performing the different functions, they are called the homologous organ. तो आपको यहाँ पे अच्छे से इसको समझना होगा कि किन ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स बोल रहे हैं, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है, जिनका ओरिजिन सिमिलर है. ओरिजिन सिमिलर होने का मतलब है कहीं ना कहीं ये सारे ऑर्गन्स डिराइव हुए हैं एक कॉमन एंसेस्टर से, बट नाउ दे आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस. दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन. अब क्या वजह है कि सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ कॉमन ओरिजिन होने के साथ साथ दे आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन? So better that is due to the divergent evolution. Now here is one more term you have to understand, that is divergent evolution. Divergent evolution का मतलब क्या होता है बेटा? Accumulation of differences between the closely related species that leads to speciation. मतलब जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है अब उनमें अलग अलग डिफरेंसेस जनरेट होना, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? Accumulation of differences between closely related species, that is called divergent evolution. इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम, सपोज करो किसी आइलैंड पे किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के 10 ऑर्गेनिस्ट रह रहे हैं. नाउ ड्यू टू सर्टेन कंडीशन इन 10 ऑर्गेनिस्ट में 2 ऑर्गेनिस्ट कहीं और किसी और आइलैंड पे जाके रहने लगे, 2 ऑर्गेनिस्ट किसी और आइलैंड पे जाने के रहने लगे. तो उनका ओरिजिन तो एक कॉमन आइलैंड था, लेकिन अब ये क्या करे, इनमें से 2 ऑर्गेनिस्ट अलग आइलैंड पे चले गए, 2 ऑर्गेनिस्ट अलग आइलैंड पे चले गए, जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट थी, वहाँ पे उनकी नीड्स जो है वो डिफरेंट थी, जिसकी वजह से उनके ऑर्गन्स इस तरह से इवॉल्व हुए कि वो उस डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर सके. तो इनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे, माना कि उनका कॉमन ओरिजिन था, बट अलग अलग हैबिटेट में जाके नाउ दे आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन. दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. चीजें डाइवर्ट हो रही है, देख रहे हो, एक आइलैंड से कुछ ऑर्गेनिस्ट अलग आइलैंड पे चले गए, कुछ अलग आइलैंड पे चले गए, जहाँ पे उनकी एनवायरमेंटल नीड्स के अकॉर्डिंग उनमें अलग अलग तरह के जो है फंक्शंस डेवलप हुए, बट उनके जो ऑर्गन्स थे उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहा, सेम रहा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसमें there will be accumulation of differences between the closely related species. और जब इस तरह के differences accumulate होते हैं बेटा, तभी क्या होगा, there will be formation of new species, जिसको हमने पढ़ा है क्या बोलते हैं, speciation. तो आपको समझ में आ रहा है how this is divergent evolution? तो यहाँ पे homologous organs के हमने example देखे. Now if we talk about the homologous organs of plants, in case of plants, spine of cactus and tendril of pea are homologous organ. कैक्टस में जो कांटे होते हैं और जो पी में टेंड्रिल होता है जो उसको क्लाइम करने में हेल्प करता है, बोथ आर होमोलोगस ऑर्गन. नाउ यू कैन सी देयर फंक्शंस आर डिफरेंट. जो स्पाइन होगा इट विल प्रोटेक्ट द कैक्टस एंड जो टेंड्रिल होगा इट विल हेल्प द पी टू क्लाइम, बट दीज आर दी होमोलोगस ऑर्गन बिकॉज बेसिकली बोथ ऑफ दीज ऑर्गन्स दे आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. लीफ के मॉडिफिकेशन से ही स्पाइन बना है, लीफ के मॉडिफिकेशन से ही टेंड्रिल बना है. सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहा, ओरिजिन क्या रहा, सेम रहा, बट फंक्शन क्या हो गए, अलग हो गए. कैसे फंक्शन अलग हो गए बेटा? स्पाइन का फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और जो पी का टेंड्रिल है उसका क्या फंक्शन है, पी को क्लाइम करने में हेल्प करना. सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स इन केस ऑफ प्लांट. सो इन्हीं होमोलोगस ऑर्गन से हमें ये पता चलता है कि हाउ दी ऑर्गेनिज दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. सो द ऑर्गेनिज विच आर हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन of organs but having the different function of those organs that are called homologous organ. तो इससे हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, मैंने यहाँ पे सारे वर्टिब्रेट्स लिखे हैं जिनके 4 लिम्स का जो फंक्शन है वो अलग है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है. सो इट गिव्स अस द आइडिया दैट ऑल दी वर्टिब्रेट्स बेसिकली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. कहीं ना कहीं जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल्स एंड बर्ड्स, उनका कहीं ना कहीं बहुत पास्ट में एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा
होगा, अलग अलग हैबिटेट्स में जाने की वजह से नाउ देयर विल बी origin of the different different functions. समझ में आ रहा है? So that gives us the evolutionary relationship कि कैसे organism आपस में related है. Now the second category of organs which provide the evidence about the evolutionary relationship are the analogous organ. तो एनालॉगस ऑर्गन्स बेटा क्या होते हैं? होमोलॉगस अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका जस्ट अपोजिट है. नाउ व्हाट आर द एनालॉगस ऑर्गन्स? Organs which have different origin and structural plan but appear similar and perform similar function. मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के वो ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चरल प्लान एंड ओरिजिन एकदम डिफरेंट है, वो अलग अलग ओरिजिन से आए हैं और स्ट्रक्चर भी एकदम डिफरेंट है, बट नाउ दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म दी सेम फंक्शन. तो यहाँ पे ओरिजिन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, बट फंक्शन क्या है? सेम है. तो फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन. Organs which have different origin and structural plan but appear similar and perform similar functions, those are called the analogous organ. यहाँ पे origin same था, structural plan same था, function different था. यहाँ पे origin अलग है, structural plan अलग है, but function क्या है? Same है. So these are called the analogous organ. For example, wing of an insect, bird and bat. इंसेक्ट का जो विंग है, बर्ड का जो विंग है और जो बैट का विंग है, सबका फंक्शन क्या होगा? दे हेल्प देम टू फ्लाई, बट सबका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? अलग होगा. समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रक्चर अलग होगा, ओरिजिन अलग होगा, बट फंक्शन क्या होगा? सेम. क्योंकि जो विंग ऑफ इंसेक्ट है वो भी उसको फ्लाई करने में हेल्प करेगा, बर्ड का जो विंग होगा वो भी उसको उड़ने में मदद करेगा, और जो बैट का विंग होगा बेसिकली जिसको हम पैटेजिया बोलते हैं, वो भी उसको क्या करेगा? फ्लाई करने में हेल्प करेगा. तो आप देख रहे हो स्ट्रक्चरल प्लान अलग है, ओरिजिन अलग है, बट फंक्शन क्या है? सेम है. Now, in case of plant, the example of analogous organ are sweet potato and potato. तो sweet potato है and potato है, both are the organs for the storage of food. तो function क्या हो गया? Same हो गया. क्या function हो गया? दोनों के दोनों food store करते हैं, but उनका जो structure है और जो उनका origin है वो अलग होगा. कैसे? जो sweet potato होता है बेटा, that is the root, that is the underground root, एंड जो पोटैटो होता है दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम. तो स्वीट पोटैटो अंडरग्राउंड रूट है, पोटैटो जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, बट दोनों का फंक्शन सेम है, दैट इज both stores the food, so they are the example of analogous organ. तो आप समझ रहे हो यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है, ओरिजिन अलग है, बट फंक्शन क्या है? सेम. अब ये वाले जो ऑर्गन्स होते हैं दे शोज दी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एनालॉजी. जो हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स थे दे शो दी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. मैंने आपको बताया था जब अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में डाइवर्ज हो गए तो उनमें अलग अलग फंक्शन जनरेट हो गए. ये वाले जो ऑर्गन्स होते हैं दे शो दी बेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एनालॉजी. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो होता है जब अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म दे स्टार्टेड शोइंग द कॉमन ट्रेट्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है अगर वो सेम तरह के फंक्शंस डेवलप करने लगे इन दी सेम एनवायरमेंट, दिस इज कॉल्ड दी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. क्या होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म दे स्टार्ट शोइंग द सिमिलरिटीज बिटवीन दी फंक्शंस ऑफ देयर ऑर्गन. अनरिलेटेड मतलब उनका ओरिजिन एंसेस्टर बिल्कुल कॉमन नहीं था, लेकिन वो सेम हैबिटेट में, सेम एनवायरमेंट में दे आर शोइंग द सेम फंक्शंस. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो आप देख लो, जैसे सपोज करो अलग अलग एनवायरमेंट से, अलग अलग हैबिटेट से आके कुछ ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर प्लेस पे सरवाइव करने लगे. अब उस प्लेस के एनवायरमेंटल नीड्स सबके लिए कॉमन है, सो दे विल डेवलप दी सेम फंक्शंस. दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इट इज कॉल्ड दी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. समझ में आ रहा है? तो जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं दे शो दी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन्स दे शो दी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो बेटा इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको सबके इन दोनों के बीच में दैट इज होमोलोगस और एनालॉगस के बीच में डिफरेंसेस अच्छे से पता होना चाहिए, डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए, एज वेल एज यू हैव टू रिमेम्बर दी एग्जाम्पल. तो आपको दोनों तरह के ऑर्गन्स क्लियर हैं. Now the third type of organs which also provide the relationship between the organisms, that is vestigial organs. So what are vestigial organs? Organs which are no more functional the way they were in their ancestral form of the trait. ऐसे ऑर्गन जो कि ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है लेकिन वो उस फंक्शनल फॉर्म में नहीं है जो जिस फंक्शनल फॉर्म में वो उसके एंसेस्टर में रहे होंगे. So the organs which are no more functional the way they were in their ancestral form of the trait. उस trait
जो कि उनके एंसेस्टर में प्रेजेंट था जब वो फंक्शनल था, लेकिन अभी प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म में ये जो ट्रेट्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन देयर फंक्शनल फॉर्म, दे आर कॉल्ड दी वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ऐसे ऑर्गन जो कि प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट तो है लेकिन उनका फंक्शन वैसा नहीं है, दे आर इवन यूजलेस, दे आर नॉन फंक्शनल, उस तरह से जिस तरह से वो अपने एंसेस्टर में फंक्शनल रहे होंगे उस तरह से प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म में वो फंक्शनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सबने सुना होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो हमारे इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज नॉट फंक्शनल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट इन आवर एंसेस्टर इट वाज फंक्शनल। ऐसे ही ये होता है विजडम टूथ। विजडम टूथ भी बेटा क्या है, हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। सो अ नंबर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज जिसका कोई फंक्शन नहीं है प्रेजेंट डे लाइफ में, बट कहीं ना कहीं ये उनके एंसेस्टर में क्या थे बेटा, functional thing. So these are the organs which are called vestigial organs, which also provide the evolutionary relationship between different organisms. So I think आपको तीनों तरह के organs clear हो गए होंगे, homologous organs, analogous organs and vestigial organs. Clear है आपको बेटा?